So hello guys, this is Avinash. I'm sorry I'm a bit late for this video, but finally the video's second part of TAT is here. This is basically on the increasing imagination, how to increase imagination while writing TAT stories. So this is Avinash, and I hope you all are aware about me, that who I am. Okay, so let's go. This is the first picture. Everybody, listen now. Take a very close look at what it is. You can see that there is approximately 5 people sitting in a attire of dhoti kurta, you can say, which is a very common attire of a village people. So we can go with a theme in which we are going to do something better in village. Okay, any development which you can do in the village can be written on this. Okay, let's suppose now I will tell you that imagination is very simple thing. Now you can see the background of the picture, you can see the attire of the people, you can see they are discussing something. It means with the help of your imagination you come to the conclusion that okay, this is a scene of a village in which some people are discussing, so I'm going to write a story which will be revolving around a village for some development, because यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना चाहिए. द रीजन इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपको सोसाइटी को कुछ बेनिफिट करने का मौका दिया गया है पिक्चर में. तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज गिवन बाय द पिक्चर. ओके, कभी भी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना है, सोसाइटी को बेनिफिट करने का मौका हमें दिया जाए. ठीक है, तो यहाँ पे एनीबडी कैन राइट एनीथिंग, वॉट एवर actions you can involve in your story. That somebody can write that he's a block development officer, somebody can write he's a normal farmer giving some different farming techniques to the people of village, somebody can write that this person got to know that how to produce jaggery. He is giving in knowledge to the other person to set up a jaggery farm, as their sugarcane was very the growth of sugarcane was very good. You can write anything in this, but the thing is, the common thing in the every story will be a village background and people of village and attire. This should be included in your story. You can write anything in this. This is what called imagination. Okay. Okay, so I think we should move to the next part. Although I will also discuss some actions. For example, if you're writing that he's a block development officer, it is not block development officer because he's not in formals. It is better to write a sarpanch of a panchayat. Okay. So if you will write him a sarpanch of a panchayat, maybe he is you know hold a meeting along with the ward members to improve the condition of village, या फिर improve the crop production of village by introducing new hybrid seed to the village person. Later on he will provide the seeds with the help of funds which is allocated by the government, and क्या बोलते हैं, help them to use the seeds appropriately. Also enhance the method of irrigation by introducing drip irrigation and sprinkling irrigation method, which will also save water inside the village. Later on he will also provide organic manure so that the fertility of soil should not be eradicated, and it will help their crop production to grow as much as they can. And later on, after doing all this thing, he also enrolled every farmer in different schemes running by the government and registered each one of them to increase their benefits by the help of government. So this is the similar. I have shared some actions which I do write in my stories. Okay, so in this way you have to think how to on a picture, and in this way you have to write some actions regarding your imagination, whatever you have did, by seeing the attire of the person, background of the picture, and also what thing is going on in the picture. For example, in this picture the discussion is being going on, so according to that you can write that. Okay, I think we should move forward to the next picture. Here you can see that a lot of student in formals is standing inside in front of a notice board, and clearly this can be a scene of a school or maybe of a BSc or BTech college. It can be both of them. Anything you can perceive according to your age. If you are a graduate candidate, perceive it as a college. If you are a 10+2 entry candidate, perceive it as a school. Here, so you can organize any type of function in school. For example, annual function, sports day, okay, and koi bhi farewell ceremony for seniors. Anything you can organize, and you have just put a notice board to aware people about the ceremony. Or you can also organize a competition. For example, debate competition, speech competition, or some 100 and 200 meter sprint competitions, or some essay writing competition. You can do anything, whatever your imagination allow you to do. You can do anything, but please be aware, you are not supposed to write any negative thing in this.
It is a very positive picture and to go with a positive theme along with having good actions regarding your theme. For example, I'm taking example. I have, let's suppose that I have organized a sports day in school. For that, I discuss with the sport teacher, put a notice on a notice board, and after that I will took permissions. Obviously I have to took before organizing anything in school, you have to took the permission of the authority of school. So I took the permission of the authority of school. I decided the numbers to sports to be played. I went into the class to select the persons from class who is going to participate in those particular sports. Later in, you have to make ground ready for the different sports going to be played, and also equipments. For example, if cricket you have to going to organize, you have to ready with the equipment of bat, ball, wickets, mat, boundaries. You are very much aware that this equipment is very important for organizing any type of game. Later on the day of occasion, you should be ready with ambulance and first aid kits. If somebody get injured, you are very prepared to help him. You will also call some chief guest to motivate the players on that particular sports day occasion, and in the last you will distribute some medals and prizes with the help of principal or that chief guest to the winners who have won that game, and finally will organize the whole sports day. So this is the way of writing a story after imagining, after increasing your imagination in these type of pictures. These are very simple pictures which generally came to SSB, and people write some negative or not good proper actions in the story, which is very easy to write. Okay, next picture you can see that a lot of person here in, I will say, labor type of person, because they have wear shorts and also banyan type of thing at the upper. So yeah, you can see a person standing behind inside, and he's not wearing banyan. If I can focus, if you can see it, this is the person who is not wearing banyan. Else everybody has weird banyan. It means he is going to be your hero. If you will perceive well, you will look at him. Okay, he is going to be your hero. And now you can see clearly see that there is some construction going on at a very high pace. Okay, so definitely it is going to be some development of some village, maybe increasing the road connectivity to improve the connectivity of rural people to the urban areas. Yeah, you can also write that you are a block development officer, you took an opportunity to implementing some windmills to increase the electricity production. As it was a coastal area, the wind speed was more than 12 nautical miles. So you decided to implement some windmills to increase more number of electricity by using the natural resources, and it will be cost friendly as well, and it will be good for environment as well, because right now India is producing electricity with the help of coal, and which is not good for environment, as you know that very much. Okay, but windmill can use directly the speed of wind to generate electricity with the help of turbo engines, which is very beneficial. There is one time investment only. It is also exactly same like solar panels. Okay, so you can also did that he implemented, he looked the potential of the place, as it was very near to the coast. The wind speed of the particular area was more than 12 nautical miles, so he decided to implement some windmill to produce free electricity for the people, and it will be very cost effective as well. For that, he presented the idea to higher authorities, got the approval, later and started the work. He hired the people under Manrega from different areas of the district, and later on completed the windmill after decided different venues, got the raw materials ready for that, and review every work which is going on ground. Also made a report to submit to the higher authorities. Finally, he implemented the idea of windmills at different places, location of the district, and finally he was able to produce a lot of electricity which is free and used by the citizen of that place. And because of that, the people was very happy, and also the cost of electricity bill was reduced. And he also implemented this idea in different districts as well with the help of higher authorities. It is a very good story. You have did the whole societal, you have did the development of society, and you have did a lot of great things in this basically. Okay, तो यही होती है इमेजिनेशन. इसी तरीके से आपको इमेजिनेशन करनी है अपनी स्टोरीज में, कि आप हर जगह कुछ अच्छा कैसे कर सकते हो. ट्राई करना है कि अगर ऐसी कोई पिक्चर्स आती है जिसमें मोर देन 5 पीपल है, तो मैं उसको एक ग्रुप रिलेटेड स्टोरी बनाऊं जिसमें सोसाइटी का कुछ भला हो. ट्राई करना है, लेकिन हर पिक्चर में ऐसा नहीं हो सकता है. अगर उसमें हो सकता है तो आप जरूर उसमें सोसाइटी का भला करें. इट इज वेरी गुड थिंग टू डू. ओके, moving to the next picture. Here you can see that a lot of people is going on horses, you know and horses, or you can also it is basically horse only. So ठीक है, तो इसमें दो टाइप की themes होती है, that people having hobby of horse riding. After completion of college, they got a vacation, they decided to do horse riding along with the friends.
to learn a new skill in their life to increase their experience and exposure. You can write that okay, he is 22-year-old BTech final year BTech student. After completion of his college, before the joining of job, he along with his friend decided to learn a new skill of horse riding, as they were very need to interested that skill. So for that, he contacted the nearby horse riding academies and got them registered. Later on, started the basic training with the horse by gaining the trust of the horse, helping him eating and all that. Later on, you started riding the horse with the right techniques, which is taught by the coaches and all that. And after that, you become confident. You increase the bond with the horse. You become very fluent in horse riding. You learned a new skill and exposure. Discussed these skills with other friends and also motivated them to do the same as they. It is very important for personality development. He improved a new skill in his life and very happy to do something like that. So you can write anything. For example, you can also prepare for some horse riding competition. You can go in the areas of Kashmir for some trip. You know, if you are aware about Pashmina tribe, they used to travel from one place to another place with horse. So this can also used in culture. You went into Kashmir into to meeting the Pashmina tribes. You मतलब you तुम वहाँ पे 1-2 दिन रहे, उसके बाद फिर उनके साथ तुमने घोड़ों पे ट्रैवल किया, जैसे वो करते एक जगह से दूसरी जगह, नोमैडिक हर्टिंग की, नए नए कल्चर के बारे में सीखा, उनके वो कल्चरल डांस को सीखा, एंड यू मेड डायरी, मेंटेन अ डायरी, यू राइट इन द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो प्रॉमिस देम टू रिटर्न बैक देयर एज इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट. तुम इस पे भी लिख सकते हो स्टोरी. तुम एक कल्चरल ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या फिर तुम एक कंपटीशन प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर एक नई स्किल जिंदगी में सीखना, हॉर्स राइडिंग, वो सीख सकते हो. तो इसी को बोलते हैं हम इमेजिनेशन. अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ब्रॉड है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर लाइफ, राइट. तो इमेजिनेशन ब्रॉड करने के लिए आपको डिफरेंट पिक्चर्स पे अलग अलग थीम सोचनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अच्छे एक्शंस भी लिखने पड़ेंगे. नॉट कि हमने सिर्फ थीम सोच लिया एंड इट इज ओके, नहीं. You have to write a good actions, whatever theme you are thinking of in story, and you can take help from chat gpt, you can take help from different AI tools which is running into the market right now, or you can also contact us. Our WhatsApp description is being given under this video only. You can join our WhatsApp community. There we used to conduct regular classes, so I think that will also help you out. Okay. So the next picture is very simple. It is a tree where two people is standing on the tree. So इस पे ना मैं बताता हूँ, लोग सोचते हैं यार क्या लिखें यार, इस पे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो एंड ऑल दैट. ठीक है, लोग इस पे क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ. नेगेटिव कैसे सोचते हैं लोग. इसमें कोई शेर नहीं दिख रहा है. लोग लिख देते हैं कि जंगल में जा रहे थे दोनों दोस्त और शेर दिखा, ये लोग पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचा लिया, एंड दे वर वेरी एजाइल टू डू दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सेव देयर लाइफ. भाई कहाँ शेर है उसमें? कोई शेर नहीं दिख रहा है. और पेड़ पे चढ़ना जिंदगी बचाना थोड़ी होता है भाई. पेड़ पे हो सकता है कुछ वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, बहुत दिनों के बाद मिले हों, तो उन्होंने अपना चाइल्डहुड रिक्रिएशन मेमोरीज की हों, हम जो बचपन में करते थे हम फिर से वो करें, हम अपने बचपन को एक बार जिए फिर से. ठीक है, तो ये हो सकता है. या फिर ये हो सकता है कि दे आर बॉटनी स्टूडेंट, बेसिकली 11th and 12th, they got a project by the teacher to read the different plants and animals by their scientific name, and also collect the samples of the leaves and all that to make a proper file, something like that. So they are doing that. Or they are also very maybe you can say that कि ये दोनों दोस्त हैं या फिर cousins हैं. After so long time they visited their village, so they decided कि हम जैसे चाइल्डहुड में पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, हम वो करते हैं, हम अच्छे अच्छे मूवमेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ खेतों में जाते हैं, खेलते हैं. आप वो ऐसी स्टोरी लिख सकते हो. आप नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? दिस इज मोर बेटर टू राइट अ नेगेटिव स्टोरी. कि नेगेटिव स्टोरी से अच्छा है कि आप ऐसी कोई स्टोरी लिखो जिसमें आप मजे कर रहे हो, या फिर आप कोई सोसाइटी बॉटनी को कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो अपने टीचर्स का. ठीक है, बोटानिकल गार्डन रिलेटेड ऐसा कुछ थीम लिखो. ठीक है, तो भाई यही होता है. ठीक है, इमेजिनेशन. अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप एक पिक्चर को हमेशा पॉजिटिव वे में देखोगे, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई नेगेटिविटी दे नहीं रखी है. तो जैसे इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो इससे बेटर कि आप कोई पॉजिटिव स्टोरी लिखो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. अब देखो, हाँ, पॉजिटिव स्टोरी वहीं तक लिखनी होती है जहां तक दिखता है पिक्चर में कि इट इज पॉजिटिव. अब ये पिक्चर जो है ना भाई, ये है नेगेटिव. साफ साफ दिख रहा है कि अ पर्सन इज डेड. उसके बगल में जो एक पर्सन है वो ही इज वेरी सैड, एंड डॉक्टर इज गिविंग हिम सम मोटिवेशन और सम टाइप ऑफ थिंग. ओके, सांत्वना दे रहा है उसको कि एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे आपको एड्रेस करना है कि वो इंसान मर गया है. यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई गई है. अब आपको क्या करना है बताता हूँ. देखो, इस पिक्चर में एक प्रॉब्लम दे रखी है कि कोई मर गया है. अब आपको क्या करना है, आपको देना है एक सॉल्यूशन कि ठीक है मर गया है. तो मरने के बाद हिंदू में क्या होता है, हिंदू में हम कल्चरल वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं 13 दिन के. ठीक है, मुस्लिमों में भी कुछ ऐसा ही सेम होता है, क्रिश्चियनिटी में भी सेम होता है. ठीक है,
तो यार फ्रॉम एनी रिलीजन डजंट मैटर भाई, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ओल्ड एज इंसान को मारना है ड्यू टू ओल्ड एज। ये कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट और ये मार्टेड फ्रॉम कश्मीर ये सब मत दिखाना प्लीज, ये नेगेटिव चीजें हैं। आप किसी ओल्ड एज इंसान को मारो जिसकी डेथ natural death है because of old age, and after that you conducted funeral of that particular person, or it is better to write a person who is relative to yourself। ये मत लिख देना कि नेबरहुड के मरने पे ना, कोई भी नेबर है आपका, नेबर मर गया, आप ना हॉस्पिटल जाके नहीं रहोगे यार, थोड़ा लॉजिकल रहना हमको एसएसबी में। लोग लिख देते हैं कि नेबर मर गया उसके लिए उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। आप खुद सोचो, रियल लाइफ में आपके नेबर में किसी की डेथ होती है, आप ऑर्गेनाइज करने जाओगे कि उसकी फैमिली ऑर्गेनाइज करेगी? आप तो नहीं करोगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाना है कि आपको कोई रिलेटिव मरा है, मोस्ट प्रोबेबली वो दादाजी ही होंगे, हमेशा हर सबकी स्टोरी में वही होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने अपने फैमिली को कैसे संभाला, आपने उनका फ्यूनरल कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्रिमेशन प्रोसेस कैसे ऑर्गेनाइज कराया, लास्ट में 13वें दिन आपने भंडारा कैसे ऑर्गेनाइज कराया, आपने एक शोक सभा कैसे ऑर्गेनाइज कराई, ये सब आपकी एक्शंस होंगे स्टोरी के। ठीक है, और व्हाट लेड टू द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कि इनिशियल लाइंस में आप क्या लिखोगे कि राम 20 was pursuing BSc, suddenly got to know that his grandfather was ill. On reaching the hospital, he got to know that he is dead, unfortunately, because of old age. And later on, he was a bit sad initially, but he decided to support his family. And for that, he started the cremation process along with his father. Went inside the near the ghat of Manikarnika in Varanasi, done the rituals. Later on, bring back to home. On for next 13 days, he decided to support his family and something like that. Okay, so this is the way you have to write a story. Okay, understand? Okay, तो ये है way of writing a story. Just give me a minute, guys. ओके भाई, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट ये पिक्चर दिख रहा है, देखो बैकग्राउंड में आपको पहाड़ वहाड़ दिखेगा, फिर एक लड़की दिखेगी। अभी देखो, किसी को ये लड़की लगती है, किसी को ये लड़का लगता है जिसने पीछे बैग रख रखा है। कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लड़की मानो लड़का मानो जिसके पीठ पे बैग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू परसीव यू कैन परसीव, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, अब देखो यहाँ पे चीज कैसी होती है भाई, मेरी बात सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड में एक पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ पे एक लड़की है, कोई इंसान है जो बैग लेके खड़ा है, राइट, ये दिख गया आपको। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा है ना सोलो ट्रिप टू इम्प्रूविंग एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ, ये हो गया बेस्ट थीम। जो एक नॉर्मल थीम है, अगर आप अच्छे एक्शंस लिखोगे बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हो आप इस पे। ठीक है, पहली चीज तो वो भाई। दूसरी चीज क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको, आप इसमें कोई रिसर्च रिलेटेड थीम भी लिख सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर एक्शन पार्ट। अगर आपने लिख दिया कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, ही वेंट टू द some areas of mountain to do research of ice thickness at different occasions and to study the pattern of avalanche and all that, सो ठीक है, आप ये स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आपके एक्शन में आती है। आपने लिख तो दिया थीम बहुत अच्छा, एकदम हाई फाई थीम लिख दिया कि हाँ ये रिसर्चर है, ये आइस की थिकनेस नापने आई है, ये एवलांच का कमिंग पैटर्न और गोइंग मतलब कमिंग पैटर्न्स नोट करती है विद द हेल्प ऑफ आइस थिकनेस एंड ऑल दैट, एंड इट मेड अ प्रिपेयर्ड डिटेल्ड नोट्स एंड सबमिटेड टू शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड गॉट अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, इट वाज अ गुड स्टोरी, but depending upon your action, if you are able to write good actions in your story, then only you are going to write these themes in your story. Otherwise आप ट्रिप पे लिखो यार, आप सोलो ट्रिप पे लिखो, आप ज्यादा अच्छे एक्शंस लिख के अच्छी स्टोरी लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, हाई लेवल थीम्स लिखनी चाहिए, तभी लिखनी चाहिए जब आपको अच्छे से एक्शंस पता है, एक एक एक्शन डिटेलिंग एक्शन पता है। ठीक है, तो आप लिखो इसमें रिसर्च रिलेटेड थीम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो कुछ मत करो भाई, चुपचाप से सोलो ट्रिप लिखो। इसको एक नया एक्सपीरियंस एक्सपोजर करना था, माउंटेन क्लाइंबिंग सीखनी थी। ठीक है, एक अच्छा कैंपर बनना था, तो उसने इसके लिए सोलो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया खुद के लिए। वो गई उत्तराखंड या गया उत्तराखंड, वहाँ पे उसने नई नई स्किल सीखी, स्टेमिना बढ़ाया, रोप टाइम की क्लासेस की, कैसे होता है, मतलब कोई भी माउंटेनियरिंग की इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, वहाँ पे कोचिंग ली कि एक्सपेडिशन माउंटेन एक्सपेडिशन में क्या कब कैसे रिएक्ट करना है, स्टेमिना कितना होना चाहिए, मुश्किल सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, रोप टाइम स्किल सीखी, डिफरेंट बूट्स का यूज करना सीखा जो इस इन्वायरमेंट में यूज होते हैं फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। And later on, after doing all this thing, he started climbing the mountains, explored a lot of different mountain peaks and all that. Finally, he gained a lot of experience, went back home, discussed the experience with friends, and also convinced them to go there again, and went there again along with the friends.
दिस द बेस्ट थिंग टू राइट, यू कैन राइट दिस, यू नो व्हाट। अगर आपको एक्शन पता है रिसर्च पे, आप रिसर्च पे लिखो, बहुत अच्छी स्टोरी। मैं अपने एक्शन नहीं बताऊंगा, मेरे पास है एक्शन, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। रीजन है कि आप फिर कैसे सीखोगे भाई, आपको सीखना है ना, मुझे थोड़ी आपके एसएसबी में टी80 की स्टोरी लिखनी है, आपको खुद लिखना है, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। अगली पिक्चर देखो, ये भी नेगेटिव पिक्चर है, ठीक है। अब देख सकते हो ये इसके ऊपर वाली पॉजिटिव पिक्चर थी, ये नेगेटिव पिक्चर है, ये पॉजिटिव पिक्चर है, ये वाली भी पॉजिटिव पिक्चर है घोड़े वाली, ठीक है। ये वाली भी कुछ हद तक पॉजिटिव पिक्चर ही, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एक नेगेटिव पिक्चर ये आ गई और एक नेगेटिव पिक्चर ये आ गई। नेगेटिव पिक्चर नहीं है ये, ऑल्दो ये एक सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन में दिख कह रहा है एक बच्चा है जो डूब रहा है, पीछे आप में नाव पे तीन चार लोग दिख रहे होंगे जो इसके तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको बचाने ही आएंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें आपको सिचुएशन दे दिया गया पिक्चर में कि एक बच्चा डूब रहा है, अब आपका काम क्या है भाई, उस बच्चे को बचाना, जान लगा दो लेकिन उस बच्चे को बचाना, और उसके वही हो गया आपके एक्शंस, ठीक है। आपकी थीम तो सेट हो गई, हाँ, क्या क्या बोलते हैं, हेल्पिंग स्मॉल चाइल्ड टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है। आपकी थीम तो सेट हो गई, अब आपको अच्छे एक्शंस लिखने पड़ेंगे। अच्छे एक्शंस कैसे होंगे, पहले वो जाएगा, ऑब्वियसली उसको बचाएगा, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, टुक द बॉय टू द बोट, एंड आफ्टर दैट फिर क्या करेगा सुनो। पहले तो ऑब्वियसली वही पेट वेट दबाएगा, इंश्योर इज सेफ्टी, लेटर ऑन उसको ठंड भी लग सकती है, हो सकता है पानी ठंडा हो, तो ये रब हिज हाथ और पैर को रब करेगा, ठीक है। उसको गर्मी देगा, उसको नए क्लॉथ देगा अपने निकाल के, ठीक है, कि तू ये पहन ले भाई, ठीक है। लेटर ऑन फिर उसको किनारे पे ले जाके ORS और ये सब ग्लूकोज देगा, एज वॉज वेरी टायर्ड। फिर उसको अवेयर करेगा कि विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्लीज डू नॉट गो इनसाइड द वाटर, इट इज़ वेरी रिस्की। लेटर ऑन फिर उसको अपने घर ड्रॉप कर देगा, सब कुछ कर दिया उसने। उसने उसको बचाया, उसको कंफर्ट किया, उसको ORS और ग्लूकोज दे दिया ताकि उसकी एनर्जी मेंटेन हो जाए, उसको अवेयर किया कि विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स अंदर मत जाओ। बाद में उसने उसको उसके फैमिली का एड्रेस वेड्रेस पूछ के उसको घर भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है, ये नहीं खत्म होगी, अब वो वहाँ पे रिटर्न आएगा और विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज ही विल पुट अ बोर्ड कि विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स नोबडी इज अलाउड टू स्विम इनसाइड द लेक, ठीक है। तुमने एक अच्छा काम भी कर दिया कि विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स कोई अलाउड नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। ये होती है कंप्लीट स्टोरी, यही है सिचुएशनल पिक्चर पे। ये नेगेटिव पिक्चर है, लेकिन आपने एक अच्छा सा सॉल्यूशन देके लास्ट में आप पॉजिटिव साइड लेके चले गए स्टोरी को, आपने एक बच्चे को बचा के उसके फैमिली मेंबर्स को दिया, एक पॉजिटिव एंडिंग हो गई। यही करना होता है ऐसे पिक्चर्स में, नेगेटिव पिक्चर में। सिमिलर आप ये देखो, इसमें भी मैंने वही बोला, फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करके जब शोक सभा आप ऑर्गेनाइज करोगे लास्ट 13 डे पे, तब उसमें लिख दो कि he remembered all the goodwills of the father and goodwill of the grandfather which he did in his life, and continued the journey or continued the legacy what he grandfather did and study hard in his college after joining it। आपने एक पॉजिटिव नोट पे खत्म किया अपनी इस नेगेटिव स्टोरी को, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव स्टोरी को पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है हमको, ठीक है। अगली पिक्चर ये देख सकते हो, एक मिनट भाई, मेरे को एक मिनट दे दो। ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हो। इस पिक्चर में एक दादाजी हैं, एक छोटा सा दादाजी नहीं है, इनफैक्ट 40-45 एज के एक मैन बैठे हैं, और एक लड़का खड़ा है जिसकी एज 16 to 20 कुछ भी हो सकती है, वट एवर यू परसीव, ओके। अब मेरी बात सुनो भाई, बहुत सिंपल चीज़ है ये, कुछ है नहीं। अब इसमें ना आप कुछ भी दिखा सकते हो भाई, एक बाप बेटे के बीच जो डिस्कशन हो सकता है ना, कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट स्टोरी वही है जो लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि हायर एजुकेशन परसीव करने के लिए कन्विंसिंग पेरेंट्स टू गो आउटसाइड टू स्टडी किसी आउटर सिटी में, एज इज ही वाज द ओनली चाइल्ड, हिज फादर वाज अ बिट कंसर्न कि बाहर कैसे रहेगा एंड ऑल दैट। ही विल कन्विंस बाय सेइंग हिम कि नहीं, आई हैव द डेडिकेशन टू क्लियर द एग्जामिनेशन, वट एवर एग्जामिनेशन यू विल सेट फॉर योरसेल्फ, ओके। एंड यू विल कन्विंस योर फादर बाय सेइंग कि यार वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छे हैं, आई विल टाइम टू टाइम रिपोर्ट यू वट एवर गोइंग ऑन इन दैट प्लेस एंड ऑल दैट, एंड आफ्टर दैट यू विल कन्विंस started a new journey for preparation of examination and you will crack it, okay। and finally and last में आपको एक लाइन लिखनी होती है इसमें बहुत जरूरी, उस लाइन को बोलते हैं after clearing your examination you went back to your father and dedicated your success to him for giving opportunity to go to that particular city for studies and helped him financially, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद जब आपको सक्सेस मिल जाएगी उस एग्जाम में ना, आप अपने फादर का ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलेंगे, आप अपने फादर को थैंक यू बोलना नहीं भूलेंगे कि एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव अचीव टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। और रियलिटी भी यही है भाई जिंदगी की, आज के ज़माने में जो आप अचीव करो, जो मैंने अचीव किया, मेरे बाप और मेरे पिताजी की वजह से ही अचीव किया भाई, ठीक है। अगर पापा नहीं होते शायद ही बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी, जिसके पापा नहीं होते हैं उसको कुछ अचीव करना, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती है भाई ज़िंदगी में, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है।
लेकिन जब तक बाप है जिंदगी में तब तक जिम्मेदारी नहीं होती है भाई। तो क्या क्या जाता है भाई एक लाइन बाप को रिस्पेक्ट देने में स्टोरी के लास्ट में? हम दे सकते हैं ना यार पापा को रिस्पेक्ट इतना, तो इट डिजर्व दैट। ओके, तो ये लाइन कभी मत भूलना अगर ऐसी स्टोरी आप लिख रहे हो तो, ठीक है। अगली देख सकते हैं ये पिक्चर, ठीक है। इट इज़ अ पिक्चर जिसमें आपको अप्रोक्स 6 लोग दिख रहे हैं, बीच में एक वायर दिख रहा है, और ये सब लोग कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो लोग इसमें माउंटेन एक्सपीडिशन अलॉन्ग विद फ्रेंड्स बनाते हैं। इट इज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली करेक्ट स्टोरी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जितनी भी भीड़ एसएसबी में आएगी ना सब वही लिखेंगे भाई। आप डिफ्रेंशिएट कैसे होगे साइक की नज़र में? आपको तो होना है ना कि भाई मुझे रिकमेंड हो रहा है तो मुझे कुछ और अच्छा लिखना पड़ेगा जो सब नहीं लिख रहे हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में मैंने, देखो मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा था, मैं हिंट दे देता हूँ बस, ठीक है। मैं इस पे लिखता था कि ये कोई टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिछा रहा है इन द एरिया ऑफ सियाचिन फॉर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्मी पर्सनल्स, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, अब एक्शन वैक्शन कुछ नहीं बताऊंगा। ये थीम थी, मैं इस पे लिखता था ताकि इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करता था, चाहे जिससे मेरा एसओआर दिख जाता था, मेरा डेडिकेशन दिख जाता था कि इतने मतलब -20 डिग्रीज में भी मैं अपनी टीम के साथ लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ अपने देश के लिए। मेरा डेडिकेशन भी शो कर देता था, और ये मेरी रीजनिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज भी शो कर देती थी, मैं जिस हिसाब से एक्शन लिखना था अपनी स्टोरीज के, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ निकल के बाहर आ जाता था, ठीक है। और सोशल अडेप्टेबिलिटी भी दिखेगी क्योंकि मैं अपनी स्टोरी में सबको स्ट्रेंजर बनाता था और सबने एक साथ ट्रेनिंग करी थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करने की, और इसी ने उनको ट्रेन किया था। तो मैं इसमें सोशल अडेप्टेबिलिटी भी दिखा देता था अपनी स्टोरीज में, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरीज आप लिख सकते हो। माउंटेन एक्सपेडिशन इज अ वेरी गुड थीम, अगर आप एक्शन अच्छे लिखते हो, कंप्लीटली फाइन स्टोरी, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट व्हाट आई टेल्ड अर्लियर इज बेटर स्टोरी इन कंपेरिजन टू माउंटेन एक्सपेडिशन। इफ यू विल सी इट क्लियरली ना, आपको ज्यादा ऑयल की शो करने का मौका मिलेगा अगर आप उसमें वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिछाओगे टू इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इन सियाचिन। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजिंग वो भी जो भी है ट्रिप व्रिप करोगे ना, तो फिर थोड़े कम ऑयल क्यूज आप शो कर पाओगे। ऑल दो ऑयल क्यूज उसमें भी शो होंगे, उससे भी आप रिकमेंड हो जाएगा वो लिख के भी, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। अब देखो यार मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या होती है लोगों की। आओ दिखाता हूँ तुमको नेगेटिविटी, फालतू की नेगेटिविटी लोगों की। ये इसके हाथ में मैं जूम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट जेंटलमैन। ये ना, ये लोग परसीव करते हैं दिस इज अ गन, ठीक है। भाई गन क्यों? दिस कैन बी अ टॉर्च एज वेल, ठीक है। ये टॉर्च भी हो सकता है, ये गन ही क्यों है, ठीक है। इसके आगे से कुछ वेव निकलती हुई दिखाई दे रही है, अगर बहुत क्लियरली आप बहुत अच्छे से देखोगे तो हो सकता है ये लाइट की वेव्स है, ये गोली का वो वेव है। आप क्यों सोच रहे हो किसने इसको गोली मार दी, ठीक है। ये आपका नेगेटिव परसेप्शन शो करता है। उसके हाथ में टॉर्च भी हो सकता है, आपने गोली क्यों सोचा, ठीक है। और ये आप बोलोगे कि ये झुका हुआ है पानी के साइड सर करके, तो हो सकता है कोई इसको रेयर फिश दिख गई हो, ये दोनों फॉरेस्ट रेंजर्स हो, रेकी पे निकले हो, दे सडनली फाउंड एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उसको रेस्क्यू कर रहे हो, ठीक है, कि उसको सेफ प्लेस पे रख के जाओ, जिंदगी अच्छे से जी पाए, ठीक है। अब यही है भाई, अब जिसने इसमें गन लिख दिया और मार दिया उसको कि अंडरकवर एजेंट बन के उसने एक ड्रग स्मगलर को मार दिया और उसकी वाहवाही हो गई। भाई नेगेटिव स्टोरी लिखी आपने स्टोरी अच्छी नहीं लिखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आपने स्टोरी अच्छी नहीं लिखी। लेकिन वहीं पे कोई इंसान लिखता है कि यार ये दोनों फॉरेस्ट रेंजर है, दे वर ऑन अ रेकी मिशन विद द बोट इन द अमेजोन नहीं, सुंदरबन डेल्टा है, ऐसा कुछ दिखा दो, ठीक है। और सडनली दे फाउंड अ वेरी इंडेंजर्ड स्पीसीज which is going to be end, so they decided to rescue that and to put it in the safe place under the guidance of different scientists and all that. So for that one person jumps inside the water with the help of torch, he give the view of another one with the help of net catches the fish, put it inside the boat under some water so that the fish can survive. Later on he क्या बोलते हैं given the fish to the scientists under the observation to study it and also preserve that particular fish so that it can't be endangered and the number of species will be increased. Later on he also organized more recce missions in the area so that they can found all the endangered species in the areas if there are any more, ठीक है। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव नोट पॉजिटिव से स्टार्ट किया, डबल पॉजिटिव पे खत्म किया। लेकिन लोग क्या करते हैं, गोली मार दी, नेगेटिव से स्टार्ट कर देते हैं जो फायदा ही नहीं है, फिर लास्ट में बोल देते हैं हाँ 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 उसने गोली मार के दुनिया को बचा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। क्या फायदा यार, अपनी नेगेटिव कर दी स्टोरी फालतू की, कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो यही है यार टीएटी, मैंने इतने पिक्चर्स देखो करा दिए भाई, ये हर जगह आते हैं एसएसबी में भाई, हर जगह आते हैं ये सारे पिक्चर्स जितने मैंने कराए हैं, हर जगह आते हैं, ठीक है। भोपाल जालंधर आर्मी बोर्ड जाओ, एफएसबी जाओ, एनएसबी जाओ, हर जगह तुमको ये पिक्चर मिलेंगे, ठीक है।
तो भाई यही होता है इमेजिनेशन का खेल। एक पिक्चर पे हज़ारों थीम आ सकती है, लेकिन बात वही होता है, एक्शन आपको पता है तो ही आप अच्छी स्टोरी लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो, आई विल कमेंट करना है इस वीडियो पे, ठीक है। आई विल ट्राई टू पुट वन मोर वीडियो विद इन 1 or 2 days टू राइटिंग सम टॉप स्टोरीज जो मैंने और मेरे दोस्तों ने, रिकमेंडेड दोस्तों ने लिखी है। ठीक है, आई विल पुट देयर स्टोरीज कि उन्होंने कैसे वो स्टोरी लिखते हैं, कैसे एक्शंस लिखते हैं। आई विल शो यू ऑल दोज एंड explain you also that how they write, how you can improve yourself by seeing the stories of these people. Okay. और लास्ट में एक और चीज़ भाई, रिसेंटली वन ऑफ आवर मेंबर ऑफ डीजी लक्की उपाध्याय गॉट recommended from 5SB Guwahati. So he was very regular member of our community and he was also recommended in ND 154. Again he recommended in ND 155. So उसने भी यही फॉलो किया था जो मैंने बोला। ठीक है, जो मैंने बोला, he followed everything, he got recommended। आज ही वो recommend हुआ and I'm very happy for him। Maybe this time he will going to join academy। ओके, आप भी कर सकते हो, बस लगे रहो भाई, मैं जो बोल रहा हूँ करो एंड बिलीव इन गॉड, भगवान सब अच्छा करेगा। जय हिंद, जय भारत भाई, थैंक यू।